Good morning, children. Welcome to class 1 computers. This is our computer book IT Planet, my bits and byte computer series 1. Children, we were doing chapter 5 of this book. We had completed chapter 5. We had done book exercises also. Today we are going to start our next chapter. Before starting the new chapter, we will revise what we did in our previous video. So children, we had done book exercise of chapter 5 in our previous video. We will revise that first and then we'll start chapter 6. So let's start. So children, here is the book exercises of chapter 5. First question number A is tick the correct answer. Children, in first we have computer is a man-made machine. So children, as we have studied since first chapter that computer is made by man. We very well know that computer is made by man. So that is why it is known as man-made machine. So you will write here we have three options: man, God and animal. So you will write here, put a tick in the box in front of man. As we know, computer is a man-made machine. That is why we have put a tick in front of option A, that is man. And here also you will write M-A-N, man. Now question number second is children, dash desktop appears after typing the password. Dash desktop appears after typing the password. So children, here we have three options: turn off, welcome and Windows. So children, as we know, first we have welcome window, and then when we type password in the welcome window, there appears window desktop. So the answer is window desktop. So you will take here in the box in front of option C, that is Windows, and here also you will write Windows desktop. Now third one, computer should be turned dash after completing any work. So children, if you have completed your work, what will you do? You will switch off your computer. Here we have three options. One is on, B is off and C is on and off. Once you have done completed the work, or you have done the work, that means your computer is already open or on. So there is no need of switching it on, and we cannot do both the works together, on and off. So option C is also not wrong. We will take in option B, that is off. That means once you have done the work, your computer is on, then the next step will be switching it off. So you will switch off the computer. Now this was question number 1. Tick the correct answer. Computer is a man-made machine. So you will write man in the blank and you will put a tick in front of option A, that is man. Then children, we have Windows dash, we have dash, second one, dash desktop appears after typing the password. So children, once you switch on the monitor, आफ्टर दैट आपके पास विंडो जो खुलती है उसको हम वेलकम विंडो बोलते हैं. वेलकम विंडो में द विंडो आस्क यू टू टाइप द पासवर्ड. व्हेन यू टाइप पासवर्ड यू गेट अनदर विंडो. दिस विंडो इज कॉल्ड विंडोज़ डेस्कटॉप. अब विंडो डेस्कटॉप पे जब हम पहुंच जाते हैं तो हम कोई भी काम कर सकते हैं. सो दिस विंडो इज कॉल्ड विंडोज़ डेस्कटॉप. तो यहाँ पे हम लिखेंगे विंडोज़, NDOWS, Windows. Now third one is computer should be turned dash after completing any work. As soon as you complete the work, you should switch off the computer. So you will put a tick here and write here switch, turn off. The computer should be turned off. So answer is turned off. Now children, coming to the next question, match the pictures. As we know, here we have some pictures given. Here we have two columns. In one column we have pictures given, the same all those steps which we have gone through to switch on the computer. जो हमने कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के लिए स्टेप्स सीखे थे, वही सारे स्टेप्स हैं. एक कॉलम में पिक्चर दिया हुआ है जिन चीज़ों को हमें स्विच ऑन करना है, और दूसरी कॉलम में वी हैव रिटन, इट इज़ गिवन व्हाट वी विल डू. सो चिल्ड्रन, लेट अस सी. In column 1, step 1, we have
हमारे पास कॉलम 1 और स्टेप 1 में हमारे पास है स्विच बोर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्विच बोर्ड को से स्विच को ऑन करते हैं। तो हियर इट इज़ गिवन, हियर यू कैन सी एफ ऑप्शन में टर्न ऑन द पावर स्विच फ्रॉम द बोर्ड। जब हमको सबसे पहला स्टेप है, हम टर्न ऑन करेंगे पावर स्विच फ्रॉम द बोर्ड। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा, दैट इज़ टर्न ऑन द, तो वो इट इज़ ऑलरेडी डन। नाउ सेकेंड वन इज UPS, दिस इज द पिक्चर ऑफ UPS। नाउ यू आर गोइंग टू स्विच ऑन द बटन ऑफ UPS। तो यहाँ पे ये है UPS, तो हम इसको पहले ऑन करेंगे UPS को, और उसके बाद ये UPS है, UPS को हम ऑन करेंगे। सेकेंड स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप। आफ्टर स्विचिंग ऑन द UPS यू विल स्विच ऑन द CPU। ये CPU है, दिस इज द पिक्चर शोन इन फ्रंट ऑफ स्टेप 3 इज अ CPU। यू आर गोइंग टू स्विच ऑन द CPU। अब आपका CPU भी ऑन हो गया। नाउ द फोर्थ स्टेप, एट द फोर्थ स्टेप यू हैव मॉनिटर, यू आर गोइंग टू स्विच ऑन द मॉनिटर। तो C से आप मैच करेंगे, हियर यू आर गोइंग टू स्विच ऑफ द मॉनिटर। एंड एट फिफ्थ स्टेप चिल्ड्रन वी हैव दिस इज वेलकम स्क्रीन, हम इसको वेलकम विंडो कहते हैं। हियर यू आर गोइंग टू welcome window, this is welcome window। here the window will ask to type password। अब यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा टाइप करने के लिए, तो you will type password। after typing the password children you will get this window, and this window is called the window desktop screen कहेंगे या window desktop कहेंगे, या तो हम इसको desktop screen कहेंगे या window desktop कहेंगे। यहाँ से your computer is ready to perform any work। अब जब ये विंडो खुल गया तो आपका विंडो आपके लिए जो काम आप करवाना चाहेंगे वो आपके लिए करने के लिए तैयार है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन वी हैव C, कंप्लीट द स्टेप्स टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। अभी हमने टर्न ऑन करना, अब उसके बाद हमें टर्न ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट द स्टेप्स टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। तो जैसा कि हमने किया था, सबसे पहले हमने स्विच ऑन करते टाइम सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने पावर पॉइंट से ऑन किया था, फिर UPS को ऑन किया था, देन वी स्विच्ड ऑन CPU, देन मॉनिटर, देन विंडोज़ पे हम पहुंच गए थे। फिर विंडो पे हमने पासवर्ड टाइप किया तो वी गेट द डेस्कटॉप स्क्रीन। अब उसका उल्टा करेंगे, सबसे पहले हम डेस्कटॉप स्क्रीन से वी विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। यहाँ पे सबसे पहले वी विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन हमारा नीचे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और यहाँ से हम स्टार्ट बटन को स्विच ऑन करेंगे। उसके बाद जब हम स्टार्ट बटन को भी स्विच ऑन द स्टार्ट बटन, द सेकेंड स्टेप यू गेट इज शट डाउन विंडो। हमको एक मेन्यू खुलेगा, यू विल गेट अ मेन्यू, फ्रॉम मेन्यू यू विल सेलेक्ट शट डाउन ऑप्शन। यहाँ से हम शट डाउन ऑप्शन को खोलेंगे एंड वी विल शट डाउन द, हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, SHUT शट DOWN डाउन। उसके बाद जब एक बार कंप्यूटर का स्क्रीन शट डाउन हो जाएगा, मॉनिटर शट डाउन हो जाएगा या विंडो शट डाउन हो जाएगा, तो वी विल स्विच ऑफ द मॉनिटर। जब विंडो शट डाउन होगा तो वी विल स्विच ऑफ द मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर पावर बटन। मॉनिटर के पावर बटन को हम बंद कर देंगे। आफ्टर दैट चिल्ड्रन, मॉनिटर के बाद हमारे पास है स्विच ऑफ द UPS। उसके बाद चांस आती है UPS की, तो हम UPS बटन को स्विच ऑन ऑफ करेंगे। उसके बाद हम फिर आएंगे मेन पावर पे, जहाँ से हमने सबसे पहले ऑन किया था। सबसे यहाँ पे स्विच ऑफ करते टाइम ये लास्ट में होगा, हम एकदम उल्टा आ रहे हैं, हम रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं। पहले जिस डायरेक्शन में हम गए थे उसके एकदम उल्टा आ रहे हैं। जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से हम शुरू करके फिर वापस जहाँ पे शुरू किया था वहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्विच ऑफ द मेन, MAI, ये A है, ये MAINPOWER, पावर। स्विच ऑफ द पावर बटन को स्विच ऑफ करेंगे। सो लेट अस सी वंस अगेन। फर्स्टली वी विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन द शट डाउन बटन, then once the windows shut down, switch off the monitor power button, switch off the UPS button and switch off the main power from the electric board. This is the complete process of switching off the computer. After that children, we have question number D.
Write T for true or F for false statement. UPS stands for uninterrupted power supply. As we have studied कि UPS supports the computer at the time of पावर कट ऑफ के टाइम पे ये जो UPS है वो हेल्प करता है कंप्यूटर को चलने में, नॉन स्टॉप चलने में, बिना इंटरप्टेड चलने में, क्योंकि ये फिर उसके बाद उसको पावर सप्लाई देता है। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बैटरी जो कि जब लाइट नहीं होती है तो कंप्यूटर को ये लाइट सप्लाई करता है या पावर सप्लाई करता है। सो ये यू विल राइट दिस इज़ ट्रू। Now, second one children, computers can work without electricity. Computers can work without electricity. So it is absolutely wrong क्योंकि computer is a electronic machine. It needs electricity to work. तो यहाँ पे आप second वाले में false लिखेंगे। फिर third one is we can switch off the computer directly. Children, we can switch off the computer directly, but it is not right to switch off the computer from the switchboard or it is not good to switch on the computer directly, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो उसके हैंग करने के चांसेस होते हैं और जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें कंप्यूटर कभी भी डायरेक्टली स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। तो वी कैन स्विच ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली इज़ रॉन्ग। सो ये है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। UPS स्टैंड्स फॉर uninterrupted power supply, true. Computers can work without electricity, false. We can switch off the computer directly is also false. Now then we have last question, that is E, application based question. Children, as we know, application based question means कि whatever we have learnt from the chapter we are going to apply in our life. वो सारी चीज़ें जो हमने चैप्टर में पढ़ी उसको हम अपने लाइफ में किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम जो भी हमने सीखा है उसको अपने लाइफ में किस तरह से अप्लाई करेंगे, वी आर गोइंग टू आंसर ऑन दैट बेसिस। आस्था ट्राइड टू स्विच ऑन द कंप्यूटर आफ्टर टर्निंग ऑन द मेन पावर, UPS, CPU and monitor. She was not able to do any work on it. Means आस्था ने स्विच ऑन, मेन स्विच से ऑन कर दिया, UPS भी ऑन कर दिया है, CPU also she has switched on, a monitor also she has switched on. Now but she is not able to work on the computer. लेकिन शायद विंडो जब खुलने के बाद वेलकम विंडो के बाद वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो हेल्प हर टू ओपन द डेस्कटॉप एंड स्टार्ट वर्किंग। अब जब उसने मॉनिटर ऑन कर लिया है तो उसको क्या दिख रहा होगा, शी मस्ट बी हैविंग द वेलकम विंडो उसके सामने होगा, मस्ट हैव अपीयर्ड। तो अब वेलकम विंडो से हमको क्या करना होता है, वी हैव टू गिव द पासवर्ड देंगे, उसके बाद हमको डेस्कटॉप स्क्रीन खुलेगा या विंडो डेस्कटॉप खुलेगा, फिर वहाँ से हमको जो भी करना है वो करेंगे। तो हमको तो पता है बिकॉज वी हैव स्टडीड, तो हमने ये पढ़ा है और ये हम किसी की हेल्प करने में उससे बताएंगे हाउ शी कैन डू फर्दर और हाउ शी कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। जितना उसने किया है उसके बाद का प्रोसेस वो कैसे करेगी, दैट वी विल बी टेलिंग हर। सो दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं हम उसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन होता है, एंड वी ट्राई टू यूज़ आवर नॉलेज फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, this is all for chapter 5. Now we are going to start our next chapter. Let us see what is there in our next chapter. So let's start chapter. This is our next chapter, that is chapter 6, the keyboard. In this chapter we are going to read all about the keyboard, and the topic which we will be covering in this chapter is keyboard, alphabet keys, number keys and special keys. So the keyboard is divided into alphabet keys, number keys and special keys, and about these keys we are going to read in this chapter. So children, before starting the chapter, let us discuss some points which we should know. So children, before this chapter, in the beginning we have studied some of the chapter in which we have studied about the computer, that it has some of the main parts without which it cannot work. These parts are keyboard, monitor, माउस एंड CPU. तो ये जो 4 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, इसके बिना कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता है, और इन चारों को मिला करके हम कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. सो चिल्ड्रन,
The keyboard is also among these 4 parts and it is one of the important part of the computer. So in our previous chapter we have studied about monitor. It was also one of the important part of the computer, without which a computer cannot perform even a single work. Similarly, keyboard is also another important part of the computer, without which a computer cannot perform even a single work or a task. So children, हम यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर एक भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता, एक सिंगल वर्क भी नहीं परफॉर्म कर सकता है. तो दीज आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. तो हमने अपने पहले वाले चैप्टर में, दैट इज़ चैप्टर 5, वी हैव स्टडीड अबाउट मॉनिटर एंड वी हैव अंडरस्टूड all about the monitor. In this chapter we are going to read about another important part of the computer, that is keyboard. So let us start. So children, here we have Lappy. Lappy says, hi friends, hey friends, after turning on the computer you would like to work on it. So to work on a computer you must know about the keyboard. So children, if we want to work on a computer, if you want to perform a task on a computer, if you want to do something on a computer, you need to know all about the कीबोर्ड्स. क्योंकि हम जो भी कंप्यूटर में टाइप करेंगे या कंप्यूटर को फीड करेंगे या जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे इन द फॉर्म ऑफ द डाटा के फॉर्म में, अगर हमको कुछ लिखना है तो हम अल्फ़ाबेट्स को प्रोवाइड करेंगे. फॉर राइटिंग, टेक्स्ट लिखने के लिए वी नीड टू टाइप अल्फ़ाबेट्स. तो हमें इन कीज़ को या कीबोर्ड को जानना ज़रूरी है. सो लेट अस नो मोर अबाउट दीज. सो हियर चिल्ड्रन, वी कैन सी a keyboard on your screen. Here this is a keyboard. This is a very sweet one or the colorful one, जिसमें आपको अलग अलग switches को अलग अलग कलर से दिया गया है so that it is easier for you to understand. तो children, if you see the red buttons at the top of the alphabet key, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ हमको पढ़ना है सिर्फ हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे we are going to read about the number keys. तो firstly children, here ये जो रेड कलर के नंबर्स कीज़ है, दी स्मॉल बटन्स आर कॉल्ड कीज़. जो कंप्यूटर में ये छोटे छोटे बटन्स हैं इनको हम कीज़ बोलते हैं. द स्मॉल बटन्स ऑन द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कीज़. सो दीज रेड कलर कीज़, यू कैन काउंट दीज कीज़ चिल्ड्रन. हियर फर्स्ट रो में जिसको मैंने सर्कल किया, यहाँ पे आपके पास 10 कीज़ है. फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसका मतलब है दीज आर द नंबर कीज़. इनको हम नंबर कीज़ बोलते हैं. और इनमें बच्चों 10 कीज़ हैं. 1 to 9 नंबर्स है. सबसे पहले हमारे पास 1 to 9 नंबर है एंड प्लस 0, एक 0 है. और 1 to 9 नंबर्स हो गए, प्लस 0 इज़ 10 नंबर. इनको मिला करके हमारे पास 10 बटन्स हैं जिनको यूज़ करके हम नंबर्स को टाइप करते हैं और इसके आगे भी नंबर्स को बनाते हैं. अगर हमको 2 डिजिट नंबर बनाना, मतलब कि 2 नंबर का नंबर बनाना है, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया या 23 24, तो उसके ऊपर के नंबर बनाना है तो वी टेक दीज नंबर्स एंड मेक द नंबर्स. 2 डिजिट, 3 डिजिट, 100 अबव, 1000, इन सबको भी नंबर को भी बनाना है तो हम इन्हीं 10 नंबरों से आगे के नंबर्स को भी बनाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड नंबर कीज़. हम इन जो 10 रेड बटन्स जिसको कि मैंने सर्कल किया हुआ है, हम इनको नंबर कीज़ बोलते हैं. उसके नीचे चिल्ड्रन आपको कुछ और बटन्स दिखाई देंगे विच आर शोन बाई समवॉट पर्पल कलर या ब्लू कलर भी आप इसको बोल सकते हो. ये जो ब्लू कलर के बटन्स हैं, दीज आर अल्फ़ाबेट की. इनको हम अल्फ़ाबेट की बोलते हैं. अल्फ़ाबेट की जैसा कि हम जानते हैं, अल्फ़ाबेट मीन्स द 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हमारे इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं हम. ये ABCD A to Z 26 होते हैं. इनको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं. तो ये जो लेटर्स अल्फ़ाबेट के हैं ये 26 होते हैं. तो 26 अल्फ़ाबेट कीज़ हमारे पास है. 3 रोज़ में अरेंज है. हमारे पास 3 ब्लू कलर के रोज़ जो दिखाई दे रहे हैं, मतलब लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनमें हमारे पास अल्फ़ाबेट की है जो नंबर के ठीक नीचे होता है. उसके अलावा चिल्ड्रन
हमारे पास कुछ सिंबल्स भी हैं, जो स्पेशल कीज़ भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये ग्रीन कलर का सबसे ऊपर स्पेस बार है, फिर उसके बाद इसके हमारे पास यहाँ पे एक वो एंटर की है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट की है, और उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस बार है, फिर सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कैप्स लॉक बार होगा, फिर शिफ्ट की, कंट्रोल की, ये सारी कीज़ हमारे पास होती हैं। तो इन सारे को हम स्पेशल कीज़ कहते हैं। तो बच्चों इनके बारे में हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट अस रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल इन द चैप्टर। तो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड. व्हाट इज कीबोर्ड? You use pencil to write in your notebook. So children, आप पेंसिल यूज़ करते हो अपने नोटबुक में लिखने के लिए. डू यू यूज़ पेंसिल? यस, ऑफ कोर्स यू यूज़ पेंसिल फॉर राइटिंग इन योर नोटबुक. तो यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है, दिस इज हियर वी कैन सी कीबोर्ड. इसे कीबोर्ड इसलिए कहते हैं, एज आई टोल्ड यू, द स्मॉल बटन्स ऑन द बोर्ड आर कॉल्ड कीज़. जो छोटे छोटे बटन्स बोर्ड पे होते हैं इनको हम कीज़ बोलते हैं. और इन बटन्स को जो बोर्ड पे, पूरे बोर्ड पे अरेंज है, इनको पूरे को हम कीबोर्ड बोलते हैं. तो यू यूज़ पेंसिल टू राइट इन योर नोटबुक. जब आपको नोटबुक में लिखनी होती है तो यू यूज़ योर पेंसिल. सिमिलरली चिल्ड्रन, इन द सेम वे, जैसा कि मैंने बोला, इन द सेम वे अ कीबोर्ड इज़ यूज टू राइट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी लिखना है तो आप क्या यूज़ करोगे? आप कीबोर्ड को यूज़ करोगे. You use pencil to write on a notebook. Similarly children, in the same way children, a keyboard is used to write on a computer. अब क्या हमको लिखना है वो डिपेंड करता है उस पर, उसके हिसाब से हम कीज़ को सेलेक्ट करते हैं. राइट ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड. अगर हमको अपने कंप्यूटर पे लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? कीबोर्ड के थ्रू लिखेंगे. हम टाइप करेंगे और हम लिखेंगे. अगर हमको अपना नाम लिखना है तो हियर आर द अल्फ़ाबेट कीज़. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की होते हैं. आप ये एक सीक्वेंस में नहीं अरेंज होते हैं, एट रेंडम अरेंज होते हैं. इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ठीक है? इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है और ये किसी प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z तक. वी हैव ऑल द अल्फ़ाबेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 rows, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. Here in these rows children we have alphabet key. हमारे पास अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं. तो जो भी हमको लिखना है, अपना नाम लिखना है, हमको किसी चीज़ के बारे में लिखना है, we use these keys to write on the keyboard. तो जैसे कि पेंसिल से हम अपने नोटबुक में लिखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे कीबोर्ड के बटन्स को दबा करके अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं. उसके बाद मैंने बताया आपको, उसके ऊपर जो एक रो है बच्चों, इसे हम नंबर कीज़ बोलते हैं. ये यहाँ तक है, नंबर कीज़ हो गए. उसके बाद ये है एंटर की, ये है शिफ्ट की, ये है कंट्रोल की इंटरनेट के लिए. फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक. कैप्स लॉक का मतलब होता है कैपिटल लिखने के लिए. एक बार हम प्रेस करेंगे तो कैपिटल लिखना शुरू करेगा और दोबारा जब हम उसको प्रेस करेंगे तो उससे हम स्मॉल लेटर लिखेंगे. तो ये सारे कीज़ हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है. ये स्पेशल कीज़ हैं जिसमें ये सारे स्पेशल कीज़ हैं. एंटर, स्पेस बार, बैक स्पेस, कंट्रोल, ये सब स्पेशल कीज़ है. और ये जो तुम्हारा है ये अल्फ़ाबेट कीज़ है और इसके ऊपर हमारे पास नंबर कीज़ है. सो चलिए लेट्स रीड फ्रॉम द चैप्टर. सो हियर children, this is all about the keyboards. So first thing about the keyboard is that a keyboard is one of the main part of the computer. I have already told you कि we have some main parts of the computer without which a computer cannot perform even a single work. और उन्हीं मेन पार्ट्स में से ये कीबोर्ड भी है. Keyboard is also one of the main part of the computer without which we cannot perform even a single task. जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर इज़ हैव सम मेन पार्ट्स, जिसके पार्ट्स के बिना हम कंप्यूटर का कोई भी काम नहीं कर सकते. उनमें से एक है कीबोर्ड. और उसके बाद वी यूज़ दीज कीबोर्ड्स to type on the computer. As I told you, same as we write using the pencil in our notebook, we use keyboard to type something on the computer. But the second point is it has many buttons which are called keys.
एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ चिल्ड्रन कि कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर वी हैव मेनी स्मॉल बटन्स, छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिसको हम कीज़ बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि हमारे हमारे कीबोर्ड पे छोटे छोटे बटन्स होते हैं, उसको हम कीज़ बोलते हैं। और उसके बाद देयर आर 101 to 105 कीज़ ऑन योर कीबोर्ड। जो हमारा कीबोर्ड होता है उस पर 101 से लेकर के 105 तक कीज़ होते हैं। एंड द कीज़ ऑन द कीबोर्ड आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जैसे कि मैंने बताया कि जो कीबोर्ड होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ में डिवाइडेड हैं। अब देखते हैं व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़, या अलग अलग तरह के कौन से कीज़ होते हैं। नाउ तो द फर्स्ट टाइप ऑफ कीज़ प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड आर चिल्ड्रन, दीज आर अल्फ़ाबेट की। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, अल्फ़ाबेट की जिसमें A to Z स्मॉल लेटर और A to Z कैपिटल लेटर। चिल्ड्रन वही कीज़ होते हैं, उतने ही कीज़ होते हैं A to Z तक ही, लेकिन जब हमको कैपिटल या स्मॉल करना होता है तो हम कैप्स लॉक दबा करके उसी से हम कैपिटल और स्मॉल टाइप करते हैं। देन वी हैव नंबर कीज़। आई शोड यू नंबर कीज़ ऑल्सो, दैट इज़ 1 to 9 and 0. दैट मीन्स वी हैव 10 नंबर कीज़. This is second part of the computer. And then third part is special keys, enter keys, space bar, caps lock, या फिर बैक स्पेस, डिलीट कीज़, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सारी कीज़ होती है उसके ऊपर। उसके अलावा चिल्ड्रन जो ब्लैक कलर का कीज़ दिखाई दे रहा था सबसे ऊपर एक लाइन में हमारे पास 12 कीज़ होती हैं, F1 to F12। ये सारी कीज़ को हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। तो चिल्ड्रन हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको अभी फंक्शन की इस डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट वी शुड नो दैट अबव द नंबर कीज़ के ऊपर एक और रो होता है जिसमें F1 से लेकर के F12 तक बटन्स होते हैं या कीज़ होते हैं। इनको हम कहते हैं, वी कॉल इट एज फंक्शन कीज़। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर आपको कीबोर्ड के पास जा कर के फिर आपको बताती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कीबोर्ड है, दिस इज़ कीबोर्ड। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये जो कीबोर्ड है ये वाली कीज़ जो इसकी होती हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 12 कीज़ हैं, इसको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं, वी कॉल इट एज फंक्शन की। फिर इसके नीचे हमारे पास ये है नंबर कीज़, और फिर इसके बाद उससे नीचे हमारे पास है अल्फ़ाबेट कीज़, और उसके बाद ये सारे आपके हैं स्पेशल कीज़। सबसे पहले बैक स्पेस है, एंटर की है, शिफ्ट की है, कंट्रोल की है, और सिमिलरली यहाँ पे कैप्स लॉक है, शिफ्ट की है, कंट्रोल कीज़ है, और भी बहुत सारे कीज़ हैं, लेकिन ये अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपके सिलेबस में है। सो यू विल रीड ओनली अबाउट दीज थिंग्स एंड ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स. So children, as I showed you, alphabet keys, first type of keys present on your keyboard is alphabet keys, number keys. Alphabet keys we have A to Z, number keys we have 1 to 9 plus 0, and special keys में we have backspace keys, enter key, space bar, caps lock, control, shift and many other keys. And at last we have function keys F1 to F12, and each function key have their own function. हर function key का कुछ ना कुछ function होता है या work होता है, that is why these keys are called function key. और so these are the keys which we will be reading on the keyboard. We will be reading about on the keyboard. तो चलिए let's read. As I told you, these children, as it is shown here, these are the function keys. इसको हम function keys कहते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे F1 है, F2, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. कितने कीज़ हैं हमारे पास? 12 फंक्शन कीज़ हैं, और हर फंक्शन की का कुछ ना कुछ फंक्शन है. उसके बाद हमारे पास नंबर कीज़ हैं. नंबर कीज़ में हमारे पास 10 नंबर कीज़ हैं. ये वाले जो लाइट पिंक है ये नंबर कीज़ है. नंबर कीज़ में वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0. अब इनको मिला करके हमको आगे भी बड़े बड़े नंबर्स हम बना सकते हैं. उसके बाद चिल्ड्रन, येलो कलर के जो बटन्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़. दीज आर द अल्फ़ाबेट कीज़. इसके अलावा वी हैव
this is backspace key, this is enter key, this is space bar, and this is caps lock. These are the different keys which are there in your syllabus. So you will be reading about these keys only. So children, first one is function key, जो कि आपके स्क्रीन पे सबसे पहले दिया हुआ है. तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले क्या है, ये है फंक्शन की. यहाँ पे आपको लिखा भी है फंक्शन. फंक्शन का मतलब होता है काम, ठीक है. और हर की का कुछ ना कुछ काम होता है. 12 कीज़ हैं, 12 के अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. इन सब चीज़ों के बारे में हमारे इस साल हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए वी विल नॉट रीड मच अबाउट दीज. वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज इन आर फर्दर हायर क्लासेस. अब उसके बाद हमारे पास है नंबर कीज़. ये हमारा फंक्शन की डार्क पिंक कलर से दिया हुआ है, और जो नंबर कीज़ है वो लाइट पिंक कलर से दिया हुआ है. और ये नंबर कीज़ क्या है, 1 से लेकर के 9 + 0 10 कीज़ हैं. ये 10 कीज़ होती हैं, और इनको यूज़ करके हम और भी बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास है अल्फ़ाबेट की. अल्फ़ाबेट का मतलब आप सब जानते हो. इंग्लिश लेटर्स जो होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं. इनको यूज़ करके हम कुछ भी कंप्यूटर पे लिख सकते हैं. चाहे हम अपना नाम लिखना चाहें, हम अपने बुक से किसी चैप्टर के बारे में लिखना चाहे, क्वेश्चन आंसर्स लिखना चाहे, हम लेटर लिखना चाहे, कुछ भी हम लिखना चाहते हैं, हम इन लेटर्स को यूज़ करके लिख सकते हैं. और जो नीचे यहाँ पे बैक स्पेस दिया हुआ है, तो अगर हम बैक स्पेस से हम लेफ़्ट हैंड साइड में एक नंबर आगे बढ़ते हैं, और इससे हम डिलीट नंबर को या किसी लेटर को डिलीट करते हैं, और किस साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में जा कर के डिलीट करते हैं. और एंटर की का मतलब है अगर हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो वी यूज़ दीज नंबर एंटर कीज़. उसके बाद स्पेस बार का मतलब होता है कहीं पे हमको स्पेस देना. अगर हमको हैप्पी बर्थडे लिखना है तो हैप्पी के बाद एक स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार को यूज़ करेंगे. एंड स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन योर कीबोर्ड. सबसे बड़ी की जो होती है वो स्पेस बार होती है. उसके बाद यहाँ पे वी हैव अ कैप्स लॉक चिल्ड्रन. कैप्स लॉक का मतलब होता है अगर हमें कहीं कैपिटल या स्मॉल लिखना है, इफ़ यू प्रेस इट वंस यू विल राइट कैपिटल, एंड वंस अगेन इफ़ यू प्रेस इट you will write small letter. So these are the keys which are present on the keyboard. This is all for today's video. Today we are going to end our video here itself. In our next video children, we'll be reading about these keys in detail. Till then, thank you.